جی ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ کے ساتھ ہنی ٹریپ کیا ہے، اور ہم یہ بات کرنے جا رہے ہیں کس طرح سے نعوذ باللہ علی امین گنڈا پور نے عمران خان کی محبت میں گلیظ چرکیا فکرہ کہہ دیا، اور ہم اسی طرح آپ کو بتاتے ہیں کہ خلیل الرحمان قمر جیسا ایک جاندیدہ شخص، ایک عقل مند شخص، ایک اتنا بڑا شاعر لکھاری، وہ کیسے ہنی ٹریپ کا شکار ہو گیا۔ آئیں دیکھیں۔ Welcome back to Tea Break. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو ٹی بریک۔ آپ کا لقمان سلیمانی آپ کے سامنے۔ ویورز کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ امید ہے انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے۔ ویورز آپ لوگوں کے سامنے بات کرنی ہے ہنی ٹریپ۔ ہنی ٹریپ کیا ہے اور یہ ہوتا کیا ہے اور اس سے ٹریپ کیا کیسے جاتا ہے۔ دوسری ہم نے بات کرنی ہے وہی خلیل الرحمان قمر صاحب اور آمنہ عروج صاحبہ کا جو کیس چل رہا ہے وہ کیا ہے اور کہاں تک پہنچا۔ تیسری نہایت ہی افسوسناک بات اور وہ آپ لوگوں کے ساتھ کرنی ہے کہ پی ٹی آئی یا عمران خان کی محبت کے اندر علی امین گنڈا پور صاحب جو کہ ہمارے وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں، انہوں نے بنوں میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے باقاعدہ شرکیہ فکرے جو ہیں وہ بول دیے۔ اب یہ بہت ایک افسوسناک بات ہے۔ چلیں ہم اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ تفصیل سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر لیتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ہمارا ٹارگٹ یہی ہے کہ ایپیسوڈ 300 تک ہم 5K تک پہنچیں۔ آپ کی مدد کی بہت ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جی علی امین گنڈا پور صاحب کے اس چیز کے اوپر، اس کے بعد خلیل الرحمان قمر اور ہنی ٹریپ ہوتا کیا ہے، ساری ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے۔ یہ بھی بتائیں گے کہ کیا آئندہ اگلی کال ہنی ٹریپ کے لیے آپ کو آ سکتی ہے، اس حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں جی علی امین گنڈا پور صاحب کل جو ہے وہ بنو جلسے سے خطاب کرتے ہوئے یا تو جوش خطابت کے اندر، یا تو محبت عمران کے اندر، یا محبت پی ٹی آئی کے اندر، یا کچھ بھی کہہ لیں کہ اپنے اقتدار کے نشے کے اندر، کچھ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، کہ انہوں نے اس چیز کا وہ فکرے بولے۔ میں ایگزیکٹ وہ فکرے نہیں بولتا، نہ بول سکتا ہوں۔ انہوں نے پشتوں میں تقریر کر رہے تھے، پشتوں کے اندر یہ فکرے بولے تھے، جس کا ایک لبے لباب یہ سمجھ آتا ہے، وہ یہ آتا تھا کہ سب سے پہلے عمران خان، اس کے بعد عوام، اور اس کے بعد نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بھی پہلے وہ دو شخصیتیں ہیں جنہوں نے ان کو وزیر اعلیٰ بنایا ہے۔ تو یہ ایک بہت عجیب سی بات ہے۔ اس طرح کا پی ٹی آئی میں پہلے بھی ہو چکا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بنی گالا کے اندر تقریر کے دوران تقریریں چل رہی تھیں، ایک بچے کو سٹیج کے اوپر بلایا گیا۔ بچہ چھوٹا تھا، 10 سال سے بھی چھوٹا تھا۔ اس بچے نے آ کے سیم اسی طرح کی بات کی تھی۔ اب اس کو ہم یاد نہیں کرواتے، آپ کو دہراتے نہیں، لیکن ہوا یہ تھا کہ پھر فوراً اس بچے کو ادھر ادھر کر دیا گیا تھا۔ ابرار الحق صاحب بھی ادھر تھے اور بھی لوگ ادھر تھے، کسی نے ان کو روکا نہیں تھا۔ بہرحال یہ کہ نابالغ بچہ تھا، اس کی معافی تلافی ہو چکی۔ لیکن یہ جو بات علی امین گنڈا پور صاحب نے کی ہے، یہ تو وزیر اعلیٰ ہیں، یہ تو سمجھدار ہیں، یہ تو لوگوں کو رستہ دکھانے والے ہیں، یہ تو مربی کا کردار ادا کرنے والے ہیں۔ انہوں نے اس طرح کی بات کی، بہت خطرناک۔ میرا نہیں خیال کہ وزیر اعلیٰ کے علاوہ کوئی اور ایسی بات کرتا تو ابھی تک اس کو جو ہے وہ سبق سکھایا جا چکا ہونا تھا۔ ہمارے معاشرے میں ہم نے لاسٹ ویڈیو میں بات کی تھی، آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے عدم برداشت کا متعامل ہے ہمارا معاشرہ، عدم برداشت میں گھرا ہوا ہے۔ تو اگر ایسی ہی چیز، کوئی ایسی چیز ہوتی جو ان کے پہنچ میں ہوتی، کچھ نہ کچھ خدا نہ خواستہ ایسا ہو جانا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا سلیمان تحصیر کے حوالے سے، سلیمان تحصیر نے بھی اس طرح کی ایک چول ماری تھی، پھر جس کے نتیجے میں انہی کے گارڈ کی طرف سے ان کے ساتھ مسہیپ ہوا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا، میں اس کی تفصیل میں بھی نہیں جانا چاہتا، صرف یہ ایک نام لے کے آپ کو یاد کرواتا ہوں کہ ممتاز قادری کا آپ کو کیس یاد ہے نا۔ تو یہی چیز سوچنا چاہیے، کبھی بھی کسی کی محبت میں اس طرح نہ گر جائیں کہ آپ لوگوں کے جو اس کے آپ کہہ لیں سٹیپ ہیں، جو درجے ہیں، جو رتبے ہیں، ان کو پھلانگ جائیں، ان کو بھول جائیں، اور نعوذ باللہ ایسی پاک ہستیوں کے اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ گستاخیوں کی طرف چلے جائیں۔ ان چیز کا دیکھنا چاہیے۔ بہت دفعہ ایسا ہو چکا کہ عمران خان صاحب بھی اپنی تقریروں کے اندر، اپنے بیانات کے اندر کہہ چکے ہیں جی
मेरी तो डायरेक्ट अल्लाह ताला ट्रेनिंग कर रहे हैं, नाउज़ बिल्लाह वो कई दफ़ा ऐसा हो चुका है कि वो अपने आप को उन पाक हस्तियों की तरफ मंसूब कर चुके हैं, उनके बराबर लाने की कोशिश करते रहे हैं। बहरहाल इस हद तक नहीं गए, अल्लाह का शुक्र है कि बचत होगी, लेकिन हम क्या हैं, हम उनके जूतों की हाक के किसी काबिल भी नहीं हैं। कंपैरिजन करना तो दूर की बात है कि आप पाक हस्तियों से कंपैरिजन करें, आप नबियों से कंपैरिजन करें, आप असहाब से कंपैरिजन करें, आप ताबी से कंपैरिजन करें, तब की बात है। तो मैं तो कहता हूँ अभी तक उलमा से, इल्म वालों के साथ किसी आम बंदे, ऐसे जाहिल बंदे जो कि दीन से नाबल्द हो, उनका कंपैरिजन मुमकिन नहीं है। तो ये बहरहाल जी हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो हमारी मेन स्टोरी है कि हनी ट्रैप है क्या और किस तरह से खलीलुर रहमान कमर साहब जो हैं आमना अरूज साहिबा के साथ जो है वो हनी ट्रैप का शिकार हुए, और किस तरह से जो है आप भी अगले वो विक्टिम हो सकते हैं जो कि हनी ट्रैप का शिकार हो। ये होता क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए दो चीजें हैं, एक तो ये है बाकायदा हनी ट्रैप के लिए गैंग बने, और जब गैंग बनते हैं ना किसी भी काम के लिए, जब कोई एम्प्लॉय रखे जाते हैं, किसी भी काम के लिए जब जॉब पे बंदे रखे जाते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन चेक की जाती है, उनकी रिक्वायरमेंट देखी जाती है। इसी तरह जिन बंदों को हनी ट्रैप करने के लिए हायर किया जाता है, उनकी ये सारी चीजें चेक की जाती हैं। मसलन अगर हम बात करें ज़ाहिरी हुस्न की, तो ज़ाहिरी हुस्न भी चेक करके उनको उसके मुताबिक जो है वो हायर किया जाता है। या अगर हम बात करें उनकी आवाज़ के हवाले से, उनकी आवाज़ भी लच्छेदार, लोचदार, इस तरह की जो है वो ट्रैक्शन वाली होनी चाहिए। ये भी चीज़ें चेक करने के बाद उसको हायर किया जाता है। अगर तो ये गैंग की फॉर्म में काम हो रहा है, प्रोफेशनली काम हो रहा है। अगर अचानक हनी ट्रैप का शिकार हो, फिर भी उसमें ये चीज़ें मैटर करती हैं। इसी तरह होता क्या है, उसकी सिंपल सी हम सिनेरियो के साथ देखें। अब अगर ग्रुप बन गया या इंडिविजुअल बन गया, वो एक होमवर्क करते हैं, होमवर्क करके देखते हैं कि ये बंदा, इस बंदे से हमने क्या काम लेना है, इस बंदे से हमने पैसा लेना है, इस बंदे से हमने कोई मालूमात लेनी है, इस बंदे से हमने कोई कौमी राज निकलवाने हैं, इस बंदे से कोई हमने अपने मुफादात के फैसले करवाने हैं। उसका बाकायदा रेकी की जाती है, उसकी बाकायदा से है वो होमवर्क करने के बाद उसको एक अननोन नंबर से कॉल की जाती है, और कॉल करके अनजान बनने की कोशिश की जाती है। ये शो कराने की कोशिश की जाती है कि जैसे गलती से कॉल लग गई हो, और इंसानी फितरत से भी खेला जाता है। और मिसाल के तौर के ऊपर कॉल आती है जी अननोन नंबर से, हेलो कैसे हैं आप नदीम बात कर रहे हैं, हेलो आपसे बात हो सकती है। अब वो बंदा सोचता है मैं तो नदीम नहीं हूँ, और ये मुझे कॉल आई है, और ये अननोन नंबर से। उस वक्त वो कॉल बंद कर देता है, लेकिन बंद करने के बाद में वो सोचता है कि इतनी खूबसूरत आवाज़ थी, इतनी खूबसूरत आवाज़ की मुझे कॉल आई, लगता है इनका रॉन्ग नंबर मिल गया होगा, पता नहीं उन्होंने नदीम से बात करनी थी, उनको नदीम से बात हो भी सकी होगी या नहीं, वो किस मुश्किल में फंसी होंगी कि उन्हें नदीम मिला भी या नहीं, या जो भी डिफरेंट अपने जहन को समझा के बहाने के बाद 20 से 30-40 मिनट के बाद दोबारा कॉल बैक करते हैं, क्योंकि उनके पास वो नंबर आ चुका होता है। अब जैसे ही कॉल बैक वापस जाती है, वो जो उधर सामने गैंग बैठा है ट्रैप करने के लिए, वो कहता है लो जी हमारा शिकार हम तक आ गया। अब वो डिफरेंट डांसर के साथ उसके साथ बात करते हैं, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट, बहुत सारे दिमाग मिले होते हैं। वो दिमागों के साथ उस तरह लचरपन अपनी कह लें कि इस तरह की बातें करके उसको घेरते घेरते ऐसी जगह के ऊपर बुला लिया जाता है कि जिस जगह के ऊपर फिर उसके साथ कुछ बातें की जाती हैं, बातों से थोड़ा आगे निकला जाता है, कोई चाय खाने वाने की बात होती है, फिर खुफिया कैमरे लगाए गए होते हैं, बाकायदा से रिकॉर्डिंग की जाती है। कुछ अर्से के बाद ऐसा होता है कि बाकायदा उनको वो रिकॉर्डिंग भेज कर या उनका हवाला देकर फिर उनको ट्रैप करना शुरू कर दिया जाता है, उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया जाता है।
फिर फाइनल नतीजा जो निकलता है वो यही निकलता है कि उनसे उन्होंने जो अपना मकसद पूरा करवाना होता है, अगर वो मकसद उनसे पैसे ऐंठना हो वो वाला, उनसे कोई मुल्की राज लेना हो वो वाला, और या उनसे कोई अपनी मनपसंद फैसले करवाने हो, मसलन वो कोई वकील है, कोई जज हैं, कोई किसी अदारे के बड़े हैं, तो वो चीज़ें उनसे करवाई जाती हैं। और ये हनी ट्रैप जो होता है, ये कह लें कि ऐसे नहीं होता। पहली बात तो ये है कि ट्रैप करने के लिए वो बड़े ठंडे दिमाग, नेचुरल, यानी इसको एक नेचुरली पोज कर रहे होते हैं। ये भी नहीं हो सकता है कि उनका काम पहले हफ्ते में निकल जाए, हो सकता है 2 दिनों में निकल जाए, हो सकता है 10 साल भी लगे रहें। यानी वो अपने काम की नौयत से वो मतलब देख के उसको एंगेज किए रखते हैं। हमने हनी ट्रैप की ऐसी स्टोरियां भी देखी कि बाकायदा जो है वो शादी तक जाते हैं, बाकायदा बच्चे भी पैदा हो जाते हैं, उसके बाद जाके वो जो मेन मकसद उनका होता है उससे वो निकलवाते हैं। इसकी एक कहानी हमने 1982 के अंदर, 1987 के अंदर हमने देखी रिसेंट। अगर आप जाके देखें ना, कुछ तजिया नगारों ने उन कहानियों में शामिल लोगों के इंटरव्यू भी किए हैं। अगर आप कहेंगे हम आपको शेयर कर देंगे कि किस तरह से हनी ट्रैप, एक बंदे की हमने कहानी सुनी, उसमें यह था कि हनी ट्रैप वो बेचारा इंडिया से हो रहा था, और इंडिया से हनी ट्रैप होते हो, बल्कि ये तो एक चले वो जो भी आप लोगों के सामने एक औरत जो है वो इस तरह ट्रैप हो गई, अपने 4 बच्चों को छोड़ के इंडिया में चली गई। इंडिया में जाके उसने शादी कर ली, और हालांकि वो अब सामने नजर में तो ये आ रहा था कि जैसे लव प्यार मोहब्बत की बातें हैं, लेकिन इसके पीछे क्या ट्रैप है, अब जाके आप उस स्टोरी का देखें, उनसे पूछें तो क्या मकसद उनसे लिए गए, क्या नहीं लिए गए, वो आपको समझ आ जाएंगे। हमने भी ऐसी स्टोरियां सुनी हैं कि आखिरकार जिनको एहसास होता है, या तो वो आला हुकाम से रब्ता कर लेते हैं, अपनी कोई ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, किसी तरह बच जाते हैं, नहीं बच सकते तो वो खुदकुशी पे आ जाते हैं, खुदकुशियां कर लेते हैं, अपने आप को खत्म कर लेते हैं। आपको याद होगा राशिद मिन्हास, मैं अगर नाम बोल रहा हूँ, हमारे निशाने हैदर के होल्डर हैं, उन्हें निशाने हैदर भी मिला था। उन्हीं का भी जो जहाज उनका, हालांकि वो टीचर था, उस्ताद था, अफसर था, वो लेके जा रहा था इंडिया की तरफ, उन्होंने अपना जो है वो जमीन में मार दिया था। तो वो भी स्टेज आती है। ये सारी स्टेजें हनी ट्रैप की सूरत में होती हैं। मकसद जरूरी नहीं कौमी राज हो, मकसद जरूरी नहीं खुफिया राज हो, मकसद जरूरी नहीं कि सिर्फ पैसा ही हो, ठीक है। तो मकसद ये भी जरूरी नहीं कि कोई अचानक ट्रैप हो गया, बाकायदा प्लानिंग का हिस्सा होता है। ये प्लानिंग से होते हैं और इस तरह की चीज होते हैं। ये एक खुशकिस्मती वाली बात थी कि खलीलुर रहमान कमर साहब इस तरह से ट्रैप हुए, या वो इतने एक्सपीरियंस नहीं थे, हालांकि 2 साल तो उनको भी हो गए थे ये काम करते हुए, वो फिर भी पकड़े गए जेल के अंदर जो है वो, अब देखें उनके साथ क्या बीतती है। लेकिन इसी के साथ साथ आप लोगों, मेरे लिए सबक ये है, इतना अक्लमंद आदमी, इतना किसी औरतों के हवाले से उनको 2 टके या उनको किसी खातर में ना लाने वाला आदमी, अगर वो इस हनी ट्रैप का शिकार हो सकता है तो आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं। तो अपने कान, आंखें, सारी हिस्से खुली रखें। हो सकता है कि अगली कॉल आपकी भी मुंतजिर हो और आपको भी कोई इसी तरह से अननोन नंबर से कॉल आए और आप उसके ऊपर रिस्पॉन्स करें। इस चीज से बचिएगा, बचिएगा, बचिएगा। बार बार हम आपको कहते हैं कि एक ही चीज से बचा जा सकता है, इस चीज से कि खुद एहतसाबी करें, अपने आप को देखें कि आप कहीं किसी हनी ट्रैप का शिकार तो नहीं हो सकते। कोई भी वजह हो, मैसेज हो, कॉल हो, किसी और जरिए से कोई आपको रास्ते में मिल जाए, कुछ भी हो, दोनों के लिए है। जेंडर डिफरेंस नहीं है, दोनों के लिए है। खवातीन भी हो सकती हैं, मर्द भी हो सकते हैं। ट्रैप खवातीन भी हो सकती है, ट्रैप मर्द भी हो सकते हैं, ट्रैप बच्चे भी हो सकते हैं। और जो अभी कह ले 9 उम्र का शिकार हैं, नई जवानी में आए हैं, वो ज्यादा इस चीज का ट्रैप का शिकार हो सकते हैं। बताना सिर्फ मकसद ये था कि हनी ट्रैप ये कोई छोटी चीज नहीं है। अगर खलीलुर रहमान कमर जैसा बंदा हनी ट्रैप का शिकार हो सकता है तो आप और मैं किस खेत में हैं? आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।